Now today we will start with execution of decrees. It is the largest chapter in CPC and most people are not aware about it. They think that it is rather tough, but it's not. Execution is all about awareness. Everything that is in execution is just of bare act level. There are some minor areas where you need to be aware regarding the conceptual point that is embedded in the section, like Order 21, Rule 58. But apart from that, and apart from few other niche areas, concept by and large is fairly simple in execution. All you have to do is be aware regarding the execution proceedings on the bare act level. So mostly it's about the awareness. It is not the thing that you don't understand it. It is mostly about awareness. Understanding part is secondary. There are only few provisions which would require in-depth view in order to properly understand it. Other than those provisions, everything else is quite simple in nature, and it is only confined to having basic awareness regarding the provisions that are contained in CPC. Just the basic awareness from the bare act will suffice. Okay? Even in the case of practice, the first step is having the basic awareness regarding the execution processes and how does it goes along. Okay? Some areas require concept, like whether the proceedings and the nature of proceedings that are contained in execution, then what are its parameters, what are the parameters of section 47, what are the parameters of order 21 rule 58, whether the proceedings is of a summary nature or final nature. These are some minor areas, conceptual areas, where a short elaboration of, let us suppose, 5 to 6 minutes would be required. But other than that, CPC is fairly simplistic in nature as far as execution is concerned. All you need to do is be aware regarding the execution processes. So the first step is awareness regarding the execution processes. Keep in mind, you have to clear your basic foundation first. All right, so whatever observations that I am making, it is always in context of your basic foundation. For the examination purpose, mere basic awareness of few of the provisions that I will tell you are important would suffice for the purpose of your examination. Okay? For practicing lawyers, they need to be aware regarding the entire part 2 and entire order 21. So before we even begin reading the important provisions of execution, I want you to know about few of the general principles that relate to powers and duties of the executing court. Okay? These are the fundamental principles that you should know beforehand, even before starting with part 2 read with order 21 of Civil Procedure Code. So let us begin. The first principle is that, as a general rule, territorial jurisdiction is a condition precedent to the court executing a decree, and therefore no court can execute a decree in respect of a property situated entirely outside its local jurisdiction. Second, an executing court cannot go behind the decree. It is very important. So focus on this one. An executing court cannot go behind the decree. It must take the decree as it stands and execute it according to its terms. It has no power to vary or modify the terms. It has no power to question its legality or correctness. This is based on the principle that a proceeding to enforce a judgment is collateral to the judgment, and therefore no inquiry into its regularity or correctness can be permitted in such a proceeding. Third is, in case of inherent lack of jurisdiction, the decree passed by the court is nullity, and its invalidity could be set up wherever and whenever it is sought to be enforced, whether in execution or in collateral proceeding. In such a case, there is no question of going behind the decree, for really, in the eyes of law, there is no decree at all.
Fourth is inherent lack of jurisdiction, however, must appear on the face of the record. Hence, if decree on the face of it discloses some material on the basis of which the court could have passed the decree, it would be valid. In such a case, the executing court must accept and execute the decree as it stands and cannot go behind it. To allow a executing court to go behind that limit would be to exalt it to the status of a superior court sitting in appeal over the decision of the court which has passed the decree. Fifth principle is a decree which is otherwise valid and executable does not become inexecutable on the death of the decree holder or of the judgment debtor and can be executed against his legal representatives. Sixth principle is when the terms of a decree are vague or ambiguous, an executing court can construe the decree to ascertain its precise meaning. For this purpose, the executing court may refer not only to the judgment but also to the pleadings of the case. Seventh principle is an executing court can go into the question of the executability or otherwise of the decree and consider whether by any subsequent developments the decree has ceased to be executable according to its terms. Alright. Eighth principle is a decree which has become inexecutable by operation of law may become executable by virtue of a subsequent amendment in the statute and can be executed after such amendment. Ninth principle is the executing court has the power to mold relief granted to the plaintiff in accordance with the changed circumstances. 10th principle is the court executing the decree transferred to it has the same powers in executing such decree as if it has been passed by itself. Okay? So these are the some of the general principles that you need to keep in mind before you even start reading about the execution process. Okay? Now, having told you these general principles, let us begin with part 2. पहले part 2 में important provisions देखते हैं. अब पहले section 36 कहता है कि जो execution of decrees के लिए जो provision है, including provisions relating to payment and the decree, shall be applicable to the execution of orders. ये section 36 कहता है. So you need to keep in mind कि execution of decree और orders same ही process से govern होते हैं. Section 37 कहता है the definition of the court which passed a decree. ये कहता है the expression court which passed a decree shall be deemed to include, main point पे आते हैं, shall be deemed to include A, where the decree has been executed has been passed in the exercise of appellate jurisdiction, the court of first instance, and B, where the court of first instance has ceased to exist or have jurisdiction to execute it, the court which, if the suit wherein the decree was passed was instituted at the time of making the application for execution of the decree, would have jurisdiction to try such suit. B उस situation के लिए है कि जब original court जिसने decree pass की गई है, it ceases to have jurisdiction or have the jurisdiction to execute such decree, तो उस court में भी आप apply कर सकते हैं, which would have the jurisdiction to try such suit. अब explanation में लिखा है the court of first instance does not cease to have jurisdiction to execute a decree merely on the ground that after institution of a suit wherein the decree was passed or after the passing of the decree, any area has been transferred from the jurisdiction of that court to the jurisdiction of any other court. But in every such case, such other court shall also have jurisdiction to execute the decree if at the time of making the application for execution of the decree, it would have jurisdiction to try such suit. Explanation बता रही है कि mere shifting of territorial jurisdiction does not affect the power of the court to execute the decree. ठीक है कि मान लीजिए मेरी कोर्ट ने डिक्री आपको ग्रांट की थी, अब आप एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं. अब मान लीजिए आपका जो एरिया था पहले मेरे जुरिस्डिक्शन में आता था, पर अब वो एरिया शिफ्ट कर गया है और आपके एरिया का जुरिस्डिक्शन किसी और कोर्ट को गया है. तो एक्सप्लेनेशन आपसे यही कह रही है कि अभी भी मेरी पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन अफेक्ट नहीं हुई है. आई कैन स्टिल ऑर्डर एग्जीक्यूशन, बट इसी केस में आप उस कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं विच वुड हैव द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द सूट जिसमें आपको डिक्री मिली. ठीक है, मतलब वो जो नया कोर्ट है
who is now established to try the suits of that nature, जिसके बेसिस पे अभी आपकी डिक्री है, उसके पास भी jurisdiction होगा. जो क्लॉज बी है ना सेक्शन 37 का, इट इज प्राइमरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. अगर मान लीजिए सब्जेक्ट मैटर ही सीज टू एग्जिस्ट कर गया, मतलब मान लीजिए वो जो सब्जेक्ट मैटर लॉ डील करता था पहले, अब वो नई स्टैट्यूट ने वो सब्जेक्ट मैटर ले लिया, या वो क्लास ऑफ कोर्ट्स को ही खत्म कर डाला स्टैट्यूट ने, तो ऐसी सिचुएशन में क्लॉज बी सीधे अप्लाई करेगा. एक्सप्लेनेशन आपको बता रही है कि मियर शिफ्टिंग ऑफ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन वुड नॉट अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द कोर्ट which passed the decree to have the power to execute such decree. ठीक है. अब आते हैं पहले स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन पे. पहले तो एग्जीक्यूशन को लाने से पहले आप एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करेंगे ना, यू विल फर्स्ट अप्लाई फॉर द एग्जीक्यूशन. तो उसके पर्पस के लिए आप एप्लीकेशन देंगे. तो पहली चीज एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन किधर देंगे, तो उसके रूल्स आपको ऑर्डर 21 के रूल 10 से मिलने शुरू होते हैं. तो रूल 10 को पहले देखिए. इट टॉक्स अबाउट एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन. इट सेज वेयर द होल्डर ऑफ अ डिक्री डिजायर्स टू एग्जीक्यूट इट, जहाँ पे डिक्री होल्डर का मन करता है कि डिक्री एग्जीक्यूट अब की जाए, ही शैल अप्लाई टू द कोर्ट विच पास द डिक्री. अभी हमने देख लिया कि व्हाट आर द कोर्ट्स विच पास द डिक्री, or to the officer if any appointed in this behalf, or if the decree has been sent under provisions herein before contained to another court, then to such court or to the proper officer thereof. तो रूल 10 तो प्राइमरली बात करता है आपके डिक्री होल्डर की. डिक्री होल्डर कैन अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन. अभी तो बेसिक कॉमन सेंस है. इसके अलावा कौन कौन कैन अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री? देखिए, legal representative of the decree holder can also apply for the execution of decree if we take into account section 146 of CPC. Similarly, any person claiming under the decree holder can apply for the execution of the decree. इन दोनों ही पर्पस के लिए सेक्शन 146 खुद ही एक बात बोलता है. It says, save as otherwise provided by this code or by any other law for the timing in force, where any proceeding may be taken or application made by or against any person, then the proceeding may be taken or application may be made by or against any person claiming under him. तो अगर आप इस प्रोविजन को प्रॉपरली कंस्ट्रू करें तो इसका मतलब ये निकलता है कि डिक्री होल्डर के अलावा डिक्री होल्डर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर द डिक्री होल्डर कैन अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन. सिमिलरली, next person who can apply for execution of a decree is transferee of the decree holder. ठीक है. transferee of decree holder को लेके प्रोविजन किधर है? transferee of decree holder को लेके प्रोविजन है सेक्शन 49 रेड विद ऑर्डर 21 रूल 16. ठीक है. इन सिचुएशंस में ट्रांसफरी ऑफ द डिक्री होल्डर कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए. सो व्हाट आर दोज कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बिफोर ट्रांसफरी ऑफ द डिक्री होल्डर कैन अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री? First is, decree must has been transferred by an assignment in writing or by operation of law. ठीक है. डिक्री ट्रांसफरी को ट्रांसफर होनी चाहिए by either assignment in writing or by operation of law. Second is, application for execution must have been made to the court which passed the decree. Third is, notice and opportunity of hearing must have been given to the transferor and the judgment debtor in case of assignment by transfer. The provision of giving notice in this matter is mandatory, and the absence of it will render the execution proceedings void. So, transferee of the decree holder can also apply for execution of the decree provided those conditions that I just mentioned are fulfilled. ठीक है. याद रखिएगा, इसमें नोटिस की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है. अगर नोटिस नहीं दी गई ऐसी सिचुएशन में तो क्या होगा? तो ऐसे में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग वॉइड हो जाएंगी एंड विल बी सेट असाइड. अच्छा, ट्रांसफरी की केस में नोटिस की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी क्यों है? सिंपली पुट, वो इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि एक बार कोर्ट खुद को ये सेटिस्फाई कर लेना चाहता है सारी की सारी पार्टीज की प्रेजेंस के साथ कि ये जो असाइनमेंट है या ट्रांसफ़र है टू द ट्रांसफरी, ये वैलिड ट्रांसफ़र है या नहीं, या ट्रांसफ़र हुआ भी था या नहीं.
once the court is satisfied that the decree has been transferred to the transferee, then in that situation it can simply order the execution at the instance of the transferee. Object of giving notice is just to secure the presence of all the parties concerned and to inquire once and for all whether the transfer or the assignment to the transferee was valid or not. ये object है. That is why the requirement of notice is mandatory, and the failure to give notice would render the execution proceeding void in case decree is executed at the instance of transferee. Similarly, joint decree holders can also apply for execution of the decree in accordance with Order 21 Rule 15. ठीक है. अब इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं. जैसे कि अभी मैंने आपको ट्रांसफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बताया कि कुछ कंडीशंस का सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है, और उस पर्पस के लिए ऑर्डर 21 का रूल 16 की जो कंडीशंस थी मैंने बताया वो फुलफिल होनी चाहिए. तभी व्हेन यू रीड सेक्शन 49 read with Order 21 Rule 16, only then when you have complied with all the conditions laid down under Order 21 Rule 16, only then you can order execution of the decree at the instance of a transferee. Similarly and likewise, there are some conditions which are required to be fulfilled when the application of execution has been given by joint decree holders. तो क्या वो conditions हैं? वो conditions ये हैं कि decree should not have imposed any condition to the contrary. पहली condition. दूसरी, एप्लीकेशन मस्ट हैव बीन मेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द डिक्री. पूरी डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन होनी चाहिए, और साथ ही साथ एप्लीकेशन मस्ट हैव बीन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द जॉइंट डिक्री होल्डर्स. ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल्ड होनी चाहिए. दिस यू कैन गैदर फ्रॉम रूल 15. अब रूल 15 का सब रूल 2 कहता है कि where the court sees sufficient cause for allowing a decree to be executed on an application made under this rule, it shall make such order as it deems necessary for protecting the interests of the person who have not joined in the application. और इसका सब रूल 1 ऑफ रूल 15 वही कंडीशंस बताता है जो मैंने जस्ट अभी आपको मेंशन की हैं. ठीक है. अब इनके अलावा और भी पर्सन हैं जो अप्लाई कर सकते हैं ड्यू टू रीजन ऑफ द लॉ और द स्पेशल स्टैट्यूट. ठीक है. सो अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल देयर आर अदर पर्सन हु कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री. जैसे कि अ रिसीवर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट में अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द डिक्री होल्डर. अब इसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, पर वो ऐसा कर सकता है. तो ये कुछ इंस्टेंस हैं उन लोगों के जो एनी पर्सन हैविंग स्पेशल इंटरेस्ट इन द डिक्री में अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन. तो इसमें एक पहला रिसीवर का पॉइंट मैंने बता दिया. दूसरा ये है कि इंसॉल्वेंट में मेक एन एप्लीकेशन बिफोर ही इज एडजुडिकेटेड एन इंसॉल्वेंट. सिमिलरली एन एजेंट ऑफ द डिक्री होल्डर में मेक एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री. ठीक है, डिक्री होल्डर का एजेंट भी एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है, प्रोवाइडेड वो ऑथराइजेशन मेंशन्ड हो कि वो एजेंट है डिक्री होल्डर का एंड इज ऑथराइज्ड टू डू सो. सिमिलरली in case of a decree in a representative suit, a person represented in such suit may also apply for execution of such a decree even though he is not on record. representative suit आप जानते हैं अब तक. तो उसमें जो person record पे नहीं है but decree is in his favor, he can still apply for the execution of that decree. ठीक है. Similarly, a real beneficiary may also maintain an execution application. Similarly, in case of a partition suit, the defendant is also a decree holder if he is the co-partner partition suit में. ठीक है. So he is also a decree holder to the extent of his share and he can also file an application for execution. ये कुछ इंस्टेंस थे स्पेशल इंस्टेंस के. ठीक है. अब मैं उन पे आता हूँ कि जो लोग अप्लाई नहीं कर सकते. वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते जो ना ही डिक्री होल्डर है नॉर हैव अ राइट टू एग्जीक्यूट अ डिक्री. दे कैन नॉट अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. सिमिलरली अ थर्ड पार्टी और अ स्ट्रेंजर हैज नो राइट टू अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री इवन दो ही मे बी अ बेनिफिशियरी अंडर अ कॉम्प्रोमाइज. ठीक है, ये जनरल प्रिंसिपल कंसेप्ट है. ये लोग नहीं अप्लाई कर सकते कभी भी. जैसे टेक द केस ऑफ अ रिसीवर. अभी आपको मैंने बताया कि जो रिसीवर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट है ही में अप्लाई फॉर द एग्जीक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द डिक्री होल्डर. लेकिन लेट अस सपोज रिसीवर मर जाए तो क्या रिसीवर का बेटा
अप्लाई कर सकता है एग्जीक्यूशन के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द डिक्री होल्डर? नो, ही कैन नॉट अप्लाई सो, ठीक है, क्योंकि कोई भी पर्सन वो इज नाइदर अ डिक्री होल्डर नॉर हैज अ राइट टू एग्जीक्यूट अ डिक्री एंड वो इज अ थर्ड पार्टी एंड अ स्ट्रेंजर टू द सूट हैज नो राइट टू अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. अब मैं आपको बताता हूं अगेंस्ट वूम एग्जीक्यूशन में भी टेकन आउट. एग्जीक्यूशन किसके खिलाफ किया जाएगा? जजमेंट डेप्टर के खिलाफ. कॉमन सेंस की बात है, डिक्री होल्डर है कोई तो कोई जजमेंट डेप्टर है, ठीक है. अगर जजमेंट डेप्टर मर गया है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के भी खिलाफ किया जा सकता है डिक्री का एग्जीक्यूशन, ठीक है. सिमिलरली श्योरिटी ऑफ द जजमेंट डेप्टर के भी खिलाफ एग्जीक्यूशन किया जा सकता है. सिमिलरली एग्जीक्यूशन can be proceeded against the representatives of or a person claiming under the judgment debtor. इन लोगों के खिलाफ execution of the decree हो सकता है, ठीक है. अब जरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाले पॉइंट के लिए सेक्शन 50, 52 और 53 देख लीजिएगा सीपीसी का. सेक्शन 145 एनफोर्समेंट ऑफ लाइबिलिटी अगेंस्ट द श्योरिटी देख लीजिएगा, जो श्योरिटी वाला पॉइंट बताया. और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सन्स क्लेमिंग अंडर द जजमेंट डेप्टर और पर्सन्स क्लेमिंग अंडर द जजमेंट डेप्टर, उनके पॉइंट को लेके सेक्शन 146 देख लीजिएगा, ठीक है. उसमें प्रोसीडिंग्स बाय और अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों का मेंशन है, ठीक है. अब सवाल उठता है कि जो एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन है वो किसको मेक की जाएगी? एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को मेक की जाएगी. कॉमन सेंस की बात है, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं, कुछ सेक्शंस हैं जिसको लेके आपको अवेयर रहना चाहिए. जैसे सेक्शन 38, it says a decree may be executed either by the court which passed it or by the court to which it is sent for execution. तो एक टर्स आंसर किसी भी क्वेश्चन के लिए ये हो सकता है जो ये पूछ रहा है कि कौन सा कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट कर सकता है, तो उसका आंसर में आप सेक्शन 38 को वर्बैटिम बोल सकते हैं कि आइदर द कोर्ट विच पास द डिक्री में एग्जीक्यूट इट और द कोर्ट टू विच इट इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूट सच अ डिक्री, ठीक है. तो कोर्ट विच पास द डिक्री का तो आंसर आपको सेक्शन 37 में ही मिल जाता है कि कौन से वो कोर्ट हैं, वो हम डिस्कस भी कर चुके हैं. अब सेक्शन 39 में आ जाते हैं जो ट्रांसफर ऑफ डिक्री की बात करता है. इट सेज that the court which passed a decree may, on the application of the decree holder, send it for execution to another court of competent jurisdiction. इसमें क्लॉज ए मेंशन करता है, if the person against whom the decree is passed actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of such other court, or B, if such person has not property within the local limits of jurisdiction of the court which passed the decree sufficient to satisfy such decree and as property within the local limits of jurisdiction of such other court, or C, if the decree directs sale or delivery of immovable property situated outside the local limits of jurisdiction of the court which passed it, or D, if the court which passed the decree considers for any other reason which it shall record in writing that the decree should be executed by such other court. तो इन सिचुएशंस में द कोर्ट विच पास द डिक्री में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट. कौन सी सिचुएशन है? क्लॉज ए से क्लॉज डी तक. अब पहली सिचुएशन तो उसने सीधे बोल दिया कि जिस पर्सन के खिलाफ डिक्री पास्ड है ही रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस इन जुरिसडिक्शन ऑफ द अनदर कोर्ट एटसेट्रा. क्लॉज बी की सिचुएशन ये है कि उस दूसरे कोर्ट के जुरिसडिक्शन में सफिशिएंट प्रॉपर्टी है विच कैन सेटिस्फाई द डिक्री. क्लॉज सी की जो सिचुएशन है वो ये है कि डिक्री डायरेक्ट सेल और डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट व्हिच पास्ड इट. क्लॉज डी की सिचुएशन ये है कि अगर कोर्ट व्हिच पास डिक्री फॉर एनी अदर रीजन कंसिडर्स दैट डिक्री शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय सच अदर कोर्ट. तो ये एकदम रेसिडुअल क्लॉज है, ये उन सिचुएशंस के लिए है जो क्लॉज ए बी सी में कवर नहीं होती हैं. तो इसके मायरियड ऑफ रीजंस हो सकते हैं एज द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस में अराइज. अब आ जाते हैं सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 38 पे. वो कहता है कोर्ट विच पास द डिक्री मे ऑफ इट्स ओन मोशन सेंड फॉर एग्जीक्यूशन टू एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन. मतलब मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिक्री पास की है, ठीक है. इट में बाय इटसेल्फ सुओ मोटो सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. मतलब सिविल जज जूनियर डिवीजन को कह सकता है कि यू विल एग्जीक्यूट द डिक्री, और सिविल जज सीनियर डिवीजन को कह सकता है कि यू विल एग्जीक्यूट द डिक्री, बिकॉज दीज कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, है ना. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट है.
हालांकि हम एक वाइड उसमें कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सब आते हैं, लेकिन एट द हेल्म पे कौन आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज। तो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज क्या कर सकता है? वो कहता है कि ओके, आई विल नॉट, आई हैव पास द डिक्री, I want that this decree should be executed by civil judge junior division or civil judge senior division. That he may do so. ठीक? Subsection 3 says, for the purpose of this section, a court shall be deemed to be a court of competent jurisdiction if at the time of making the application for transfer of the decree to it, such court would have jurisdiction to try the suit in which such decree was passed. तो मतलब ये बता रहा है कि जो कोर्ट डिक्री को ट्रांसफर कर रहा है ना, मतलब इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझिए तो समझना आसान होगा। मान लीजिए मेरा कोर्ट है और मैंने डिक्री पास की है कि आपका कोर्ट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है? तो सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 38 कह रहा है कि आप एक कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन तभी माने जाएंगे जब जिस मैटर पे मैंने डिक्री पास की है उस मैटर को आप ट्राई कर सकते थे। तो लेट अस सपोज आई डिसाइडेड अ टाइटल सूट, ठीक है, मैंने डिक्री पास कर दी, अब वो डिक्री आपके पास ट्रांसफर हुई, तो अब आप भी क्या उस मैटर पे टाइटल सूट डिसाइड कर सकते हैं या नहीं? क्या वो मैटर ट्राई कर सकते हैं या नहीं? अगर आंसर है हाँ, देन यू आर अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है? But if the answer is no, then you are not a court of competent jurisdiction. Let us suppose I decided a title on immovable property, ठीक है, एंड यू आर द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, और मैंने आपको डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए दे दी, तो क्या आप कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन है? नो, यू आर नॉट, यू कैन नॉट डिसाइड अ टाइटल सूट। सिमिलरली अ रेवेन्यू कोर्ट कैन नॉट डिसाइड अ टाइटल सूट, तो अगर मैंने उसको दे दी फॉर एग्जीक्यूशन तो इट वुड नॉट बी प्रॉपर। सिमिलरली अगर मैंने रेंट कंट्रोलर को दे दी अपनी डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन, देन अगेन दिस ट्रांसफर इज नॉट प्रॉपर। यहाँ पे भी ये नहीं माना जाएगा कि आई ट्रांसफर द डिक्री टू द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि ये जितने भी कोर्ट है दे कैन नॉट ट्राई दिस मैटर विच आई हैव ट्राइड, ठीक है? तो यहाँ पे जो ज्यूरिसडिक्शन का इश्यू है सब्जेक्ट मैटर से देखा जाएगा कि क्या जिस कोर्ट को डिक्री ट्रांसफर की गई है डज इट हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई दैट मैटर ऑन विच द डिक्री वाज पास्ड, ठीक? सब Section 4 says, nothing in this section shall be deemed to authorize the court which passed a decree to execute such decree against any person or property outside the local limits of its jurisdiction. तो ये एक सेविंग क्लॉज है, आपको इसको पूरा इफेक्ट देना है। ये आपको प्रॉपरली ये बता रहा है कि आप सेक्शन 39 को ऐसे कंस्ट्रू नहीं करेंगे जैसे कि इट वुड एम्पावर द कोर्ट टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ any decree against any person or property which is situated outside its local limit of jurisdiction. So let us suppose I am a judge of Delhi. Then in accordance with section 38 subsection 4, sorry, section 39 subsection 4, I cannot order execution of a decree of a person who is sitting in Bihar or Tamil Nadu. The proper procedure is I should transfer that decree to the court of Tamil Nadu or Bihar as the case may be and let them execute it on my behalf, and when they have executed it then certify it to me that they have executed it, and if they have failed to execute it then certify it to me that why they failed to execute it and the primary reasons for doing so. जैसे कि आपको सेक्शन 41 बताएगा, the court to which decree is sent for execution shall certify to the court which passed it the fact of execution, or where the former court fails to execute the same, circumstances attending such failure. अब सेक्शन 42 आपकी पावर्स ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिक्री की भी बात करता है, इसको भी लगे हाथ देख ही लेते हैं। ये कहता है द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री sent to it shall have the same power in executing such decree as if it had been passed by itself. मतलब जो कोर्ट वो डिक्री एग्जीक्यूट कर रहा है जो उसको भेजी गई है बाय सम अदर कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, उसके पास हर वो शक्ति होगी जैसा कि उसने खुद ही वो डिक्री पास की हो इन द मैटर्स ऑफ एग्जीक्यूशन, एंड ऑल पर्सन इन डिसोबेइंग और obstructing the execution of the decree shall be punished by such court in the same manner as if it had passed the decree, and its order in executing such decree shall be subject to the same rules in respect of appeal as if the decree was passed by itself. ठीक है? सो प्राइमरी पर्पस के लिए वो यही माना जाएगा कि जो कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट कर रहा है उसी ने वो डिक्री पास की होगी। अगर आप उसे ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे, तो आप वैसे ही पनिश होंगे जैसे कि
आप तब पनिश होते जब आपने उसका कोई ऑर्डर का वायलेशन किया होता, ठीक है। तब आप वहाँ पे ये बहाना नहीं बना सकते कि हमने आपके कोर्ट का थोड़ी ना वायलेशन किया है, हमने तो उस कोर्ट का वायलेशन किया है जिसने डिग्री आपके पास भेजी थी। तो अगर हमारे खिलाफ किसी को प्रोसीड करना है तो वो कोर्ट करे, कोर्ट आपको सीधे बोलेगा सेक्शन 42 देखिए क्या कह रहा है। अब जो इसका सब सेक्शन 1 है जनरल डिक्लेरेशन है। अब इसमें कुछ लिमिट्स हैं, ठीक है। जनरल डिक्लेरेशन, और जब भी मैं कहता हूँ कोई चीज़ जनरल है इसका मतलब उसका एक्सेप्शन भी है। तो सब सेक्शन 2 बोलेगा of section 42 आपसे कि without the prejudice to the generality of the provisions of subsection 1 the powers of the court under that section shall include the following powers of the court which pass the decree, namely the power to send the decree for execution to another court under section 39। मतलब जिस कोर्ट को आपने डिक्री ट्रांसफर की है वो किसी और कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है। लेट अस सपोज फॉर वन रीजन और द अदर उसको लगता है मैं प्रॉपर कोर्ट नहीं हूँ, दूसरा कोर्ट इज प्रॉपर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिक्री। Similarly, clause B कहता है the power to execute the decree against the legal representative of the deceased judgment debtor under section 50, and clause C the power to order attachment of the decree, ठीक है। तो डिक्री भी अटैच कर सकता है and he has the power to execute the decree against the legal representative of the deceased judgment debtor। Similar powers है। But in contrast to this, just have a look at subsection 4। कुछ powers हैं जो confer नहीं होती हैं to the court to whom the decree has been transferred। वो क्या powers हैं? Subsection 4 कहता है nothing in this section shall be deemed to confer on the court to which the decree is sent for execution any of the following powers, namely the power to order execution at the instance of transferee of the decree। तो वो ये पावर नहीं एक्सरसाइज कर सकता। द पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ ट्रांसफरी ऑफ डिक्री, दिस पावर कैन ओनली बी एक्सरसाइज बाय द कोर्ट व्हिच पास द डिक्री। Similarly, clause B कहता है in case of a decree passed against the firm, power to grant leave to execute such decree against any person other than such a person as is referred to in clause B or clause C of sub rule 1 of rule 50 of order 21। तो अभी तो हम उस पर आए नहीं है, तो बेसिकली आप इन बात का ध्यान रखिए कि क्या लिमिटेशन है ट्रांसफरी कोर्ट पे। ट्रांसफरी कोर्ट पे कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। इवन दो जनरल पर्पस के लिए वो वैसे ही माना जाएगा हैड इट बीन द कोर्ट व्हिच पास द डिक्री, तो एग्जीक्यूशन की सारी पावर सेम है, along with the power to transfer it, along with the power to execute the decree against the legal representative of the deceased judgment debtor, power to order attachment of the decree, and all the other powers which are available to the courts which pass the decree had it execute the decree in any manner। So similarly the transferee court can exercise the power to execute the decree in the same manner। However, notwithstanding this general principle, there are some limitations। The first limitation is that it cannot order execution at the instance of the transferee of the decree, ठीक है। Similarly, in the case the decree has been passed against the firm, then it does not have the power to grant leave to execute such decree against any person other than the person that has been referred to in clause B or C of sub rule 1 of rule 50 of order 21। इस पर्पस के लिए सेक्शन कह रहा हूँ रूल 50 ऑफ ऑर्डर 21 का क्लॉज बी कहता है अगेंस्ट एनी पर्सन हु हैज अपीयर्ड इन हिज ओन नेम इन रूल 6 और 7 ऑफ ऑर्डर 30 और हु हैज इज एडमिटेड इन हिज प्लीडिंग दैट ही इज और हैज बीन एडजस्ट टू बी अ पार्टनर। और क्लॉज सी कहता है अगेंस्ट एनी पर्सन हु हैज इंडिविजुअली सर्व्ड एज अ पार्टनर विद अ समन्स एंड हैज फेल्ड टू अपीयर। इन दोनों पर्सन को छोड़ के द कोर्ट टू whom the decree is sent for execution cannot have the power to execute the decree passed against the firm and the power to grant leave to execute such decree against any person that is mentioned in rule 50 other than the person that is mentioned in clause B or B, clause B and C। तो बेसिकली इतना थोड़ी सी चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस यहाँ पे अवेयरनेस की बात है, यू जस्ट नीड टू बी अवेयर रिगार्डिंग इट। मैं पार्टनरशिप एक्ट के टर्म्स यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि अगर यूज़ करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू अवॉइड द पेट ट्रैप ऑफ दोज वर्ड्स। तो इसीलिए मैं आपको सिंपल रहने को कह रहा हूँ कि आप बस क्लॉज 4 को ज़रूर ध्यान रखिएगा ऑफ सेक्शन 42 जो कह रहा है कि बाकी सारी पावर्स अवेलेबल है द कोर्ट टू विच द डिक्री हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, सिवाय इन पावर्स के दो पावर्स हैं जो अवेलेबल नहीं है उसके पास। पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ ट्रांसफरी ऑफ एट द इंस्टेंस ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द डिक्री, and in case the decree has been passed against the firm then it does not have the power to grant leave to execute such decree, ठीक है, against any person who is mentioned in clause A। अब उसका एक्सेप्शन ये है कि क्लॉज बी और सी में जो
पर्सन्स मेंशन्ड है अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 50 ऑफ ऑर्डर 21, उनके खिलाफ डिग्री एग्जीक्यूट कर सकता है, बट नॉट अगेंस्ट एनीवन एल्स। ठीक है, तो बेयर एक्ट लेवल पे बस आपको एग्जाम के पर्पस के लिए और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी इतना ही ध्यान देना है प्राइमरली कि 42 का सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है और सबसेक्शन 4 किस चीज़ पे लिमिटेशन लगा रहा है। ठीक है, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अब सवाल उठता है कि एप्लीकेशन का कंटेंट क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप ऑर्डर 21 का रूल 11 देखिए, वो आपको बताता है कि ओरल एप्लीकेशन कैसी होगी, रिटर्न एप्लीकेशन कैसी होगी। ओरल एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि वेदर डिक्रीज फॉर पेमेंट ऑफ मनी द कोर्ट में ऑन द ओरल एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द डिक्री ऑर्डर इमीडिएट एग्जीक्यूशन देयर ऑफ बाय अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेप्टर प्रायर टू प्रिपरेशन ऑफ वारंट इफ ही इज विद इन द प्रेजेंस ऑफ द कोर्ट। रिटर्न एप्लीकेशन के केस में वो कहता है कि एवरी एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री शैल बी इन राइटिंग। ये क्या कहते हैं, जनरल प्रोविजन है। ठीक है, ओरल जो रूल 11 है उसका जो ओरल एप्लीकेशन है ना, सब रूल 1 वाला, ये एक्सेप्शनल सिनेरियो है। यहाँ पे ये तब अप्लाई करता है व्हेन द डिक्रीज फॉर पेमेंट ऑफ मनी और डिक्री होल्डर ने ओरल एप्लीकेशन की है और जो जजमेंट डेप्टर है वो कोर्ट के प्रेजेंस में, तभी वहाँ पे अरेस्ट हो सकती है। तो ओरल एप्लीकेशन एक एक्सेप्शन है। इसको छोड़ के जितनी भी एप्लीकेशन है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री वो राइटिंग में होंगी एंड इट विल बी साइंड एंड वेरीफाइड बाय द एप्लीकेंट और सम अदर पर्सन प्रूव टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। अब उसमें टैबुलर फॉर्म में ये पर्टिकुलर्स होंगे, नेम ऑफ द सूट, नेम ऑफ द पार्टी, डेट ऑफ द डिक्री, क्या अपील प्रेफर हुई है, क्या कोई पेमेंट या एडजस्टमेंट हुआ है, एसेट्रा एसेट्रा। तो आपको क्लॉज ए से लेके क्लॉज जे तक मैटर मिलेंगे। अब क्लॉज जे में पूछा जाता है कि मोड बताइए जिसमें असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आप इसको मोड में पूरा एप्लीकेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि क्लॉज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे पढ़ूंगा तो इट वुड बी अ रिडंडेंट एक्सरसाइज, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। इसमें क्लॉज जे कहता है कि किस तरीके से आपको कोर्ट की असिस्टेंस रिक्वायर्ड है। क्या डिलीवरी ऑफ किसी प्रॉपर्टी की करवानी है विच हैज़ बीन स्पेसिफिकली डिक्रीड, अटैचमेंट की ज़रूरत है आपको, या अटैचमेंट एंड सेल की ज़रूरत है, या सेल विदाउट अटैचमेंट एक्सेट्रा, आपको अरेस्ट और डिटेंशन चाहिए किसी जजमेंट डेप्टर का इन द प्रिजन, अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर चाहिए, कोई और रिलीफ चाहिए एज द नेचर ऑफ द केस में रिक्वायर। अब प्रैक्टिकली एक पॉइंट बता दूं, अब इसका जब आप सब रूल 3 देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कोर्ट टू विच एन एप्लीकेशन इज मेड इन सब रूल 2 मे रिक्वायर द एप्लीकेंट टू प्रोड्यूस अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिक्री। पर प्रैक्टिकली आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिक्री लगानी ही होती है, अब लगा के ही एप्लीकेशन दीजिएगा। ठीक है, अब रूल 11 ने आपसे कहता है कि व्हेन द एप्लीकेशन इज मेड फॉर अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द प्रिजन ऑफ द जजमेंट डेप्टर इट शैल स्टेट और बी अकम्पनीड बाय एन एफिडेविट स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑन विच द अरेस्ट इज अप्लाइड फॉर। ये स्पेसिफिकली क्लॉज जे के सब क्लॉज 3 के कंटेक्स्ट में। ठीक है, कि जब भी आप अरेस्ट और डिटेंशन मांगते हैं जजमेंट डेप्टर का प्रिजन में, तो एफिडेविट साथ में आप अकम्पनी करेंगे और बताएंगे कि किस ग्राउंड पे आप अरेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्यों चाहते हैं उसकी अरेस्ट। ठीक है, अब रूल 12 कहता है कि व्हेन द एप्लीकेशन इज मेड फॉर द अटैचमेंट ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेप्टर बट जो जजमेंट डेप्टर की पोजीशन में नहीं है, the decree holder shall annex to the application the inventory of the property to be attached containing a reasonably accurate description of the same। अब रूल 13 कहता है कि जहाँ पे अटैचमेंट ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी चाहिए विच बिलोंग्स टू द जजमेंट डेप्टर, तो एप्लीकेशन के फुट पे आप फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन रखेंगे कि बाउंड्री क्या है उसकी, नंबर्स इन रिकॉर्ड सेटलमेंट या सर्वे में क्या है उसका, फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और जजमेंट डेप्टर का शेयर उसमें कितना है। रूल 14 टॉक्स अबाउट पावर टू रिक्वायर सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कलेक्टर्स रजिस्टर। वो कहता है कि जहाँ पे एप्लीकेशन इज मेड फॉर द अटैचमेंट ऑफ एनी लैंड विच इज रजिस्टर्ड इन द ऑफिस ऑफ कलेक्टर, तो कोर्ट एप्लीकेंट से कह सकता है कि भाई उस रजिस्टर का सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट लाइए फ्रॉम सच ऑफिस, जो स्पेसिफाई करेगा कि द पर्सन्स हु आर रजिस्टर्ड एज द प्रोप्राइटर्स ऑफ और आर प्रोसेसिंग एनी ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट इन लैंड or its revenue or as liable to pay revenue for the land and the shares of the registered proprietor। ठीक है, इसीलिए वो कलेक्टर का के रजिस्टर का सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट मांगता है।
क्योंकि उसमें आइडेंटिफिकेशन के पर्पज से किसका कितना इंटरेस्ट है, किस लेवल तक का इंटरेस्ट है, और कौन लाइबल है लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए, वो बड़े अच्छे से एक्यूरेटली मार्क होता है. सो दैट इज़ वाई अगर ऑर्डिनरली कोई भी लैंड ऐसा है जो रजिस्टर्ड है इन द ऑफिस ऑफ कलेक्टर, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उसका सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट लेता ही लेता है. ठीक है, इनफैक्ट आपको लगा के ही रखना चाहिए. अब एक चीज़ बता दूं आपको, ऑर्डर 21 के रूल 11 के कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेशन अगर आपको देखनी है तो आप फॉर्म नंबर 6 देखिए ऑफ अपेंडिक्स ई. ठीक है, एक बार उसको देख लीजिएगा, नजरें दौड़ा लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया हो जाए. इनफैक्ट ये फॉर्म्स पे एक बार नज़र रखिएगा और एक बार एक सिंगल रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपका क्या होगा ना, आपको थोड़ा आइडिया होगा कि ओके डिक्री के एग्जीक्यूट होने के लिए कौन कौन सी एप्लीकेशन कैसे कैसे लगाई जाती हैं, क्या फॉर्म है और क्या फॉर्म नहीं है. ठीक है, इनफैक्ट आई विल हाईली रिकमेंड फॉर यू टू रीड दिस फॉर्म नंबर 6 ऑफ अपेंडिक्स सी. ठीक है, देख लीजिएगा एप्लीकेशन कैसी होती है, आपकी सीपीसी में ही दी हुई है, सीपीसी की बेयर एक्ट में. अब सीधे आ जाइए रूल 17 पे. ठीक है, ये बताता है कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा. ठीक है, इट प्रिस्क्राइब्स द प्रोसीजर टू बी फॉलोड ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री. ये कहता है कि on receiving the application for execution of the decree as provided by Rule 11 sub Rule 2, the court shall ascertain whether the requirements of Rule 11 to 14 as may be applicable to the case has been complied with. ठीक है, देखेगा कि 11 से 14 के जो रूल है वो कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं, और अगर वो कंप्लाइड नहीं है तो कोर्ट आपको अलाउ करेगा कि अगर कोई एप्लीकेशन में डिफेक्ट है या कोई डॉक्यूमेंट्स आप एनेक्स करना भूल गए, या लेट अस सपोज डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी आपको एनेक्स करनी थी आपने नहीं की, तो ऐसी सिचुएशन में वो बोलेगा कि आप वो क्या कहते हैं उसको एनेक्स करके लाइए या डिफेक्ट को रेमेडी करिए. ठीक है, वो ये भी रिक्वायर कर सकता है कि आप उसी वक्त डिफेक्ट रेमेडी करिए, या आपको टाइम अलॉट कर सकता है हफ्ते भर 10 दिन का, एज द केस में भी. अब याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रोसीजरल प्रोविजन है तो ये लिबरली कंस्ट्रू होगा. ठीक है, ये कैसे कंस्ट्रू होगा, लिबरल कंस्ट्रक्शन होगा इसका स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन नहीं होगा. प्रोसीजरल लॉज को लिबरली कंस्ट्रू किया जाता है, ये प्रोसीजरल प्रोविजन है तो इसका लिबरल कंस्ट्रक्शन होगा. रूल 1 कहता है कि अगर डिफेक्ट रेमेडी नहीं हुआ है तो कोर्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा, पर प्रोवाइजो फिर कहता है कि वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट there is some inaccuracy as to amount referred to in clause G or H of sub rule 2 of rule 11, the court shall, instead of rejecting the application, decide provisionally without prejudice to the right of the parties to have the amount finally decided in the course of proceedings, the amount, and make an order for execution of the decree for the amount so provisionally decided. Sub rule 2 says of rule 17 कि when the application is amended in the under the provision of sub rule 1, it shall be deemed to have an application in accordance, it shall be deemed to have been an application in accordance with law and presented on the date when it was first presented. ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए कि जो डेट काउंट होती है वो डेट ऑफ अमेंडमेंट से नहीं काउंट होती, जिस डेट को एप्लीकेशन फर्स्ट प्रेजेंट की जाती है उसी डेट से काउंट होती है. ठीक है, sub rule 3 says every amendment made in this rule shall be signed or initialed by the judge. Sub rule 4 says where the application is admitted, the court shall enter it in a proper register, a note of the application and the date on which it was made, and shall, subject to the provision hereinafter contained, order execution of the decree according to the nature of the application, provided that in case of the decree for the payment of money, the value of the property attached shall, as nearly as may be, correspond with the amount due under the decree. अब इसकी हेयरिंग कैसे होगी इस एप्लीकेशन की, इसके लिए आप रूल 105 और 106 देखिए. रूल 105 कहता है द कोर्ट बिफोर विच द एप्लीकेशन अंडर द फोरगोइंग रूल्स ऑफ दिस ऑर्डर इज पेंडिंग may fix a date for hearing of the application, where on the day fixed or any other day to which the hearing may be adjourned, the applicant does not appear when the case is called on for hearing, the court may make an order that the application be dismissed. अगर आप appear नहीं हुए जिस दिन पे hearing होनी थी, आपने application file की, तो court क्या कर सकता है, आपकी application dismiss कर सकता है. Where the applicant appears and the opposite party does not appear to whom the notice has been issued, तब क्या होगा, application will be heard ex parte. Common sense की बात है, legal common sense obviously.
and the court may pass such order as it thinks fit. Explanation कहती है an application referred to in sub rule 1 includes a claim or objection made under rule 58. rule 58 पे अभी बाद में आएंगे. Rule 106 कहता है कि applicant against whom an order is made under sub rule 2 of rule 105 or the opposite party against whom an order is passed ex parte under sub rule 3 of the rule or under sub rule 1 of rule 23 may apply to the court to set aside the order, and if he satisfied the court that there was, you guessed it, sufficient cause for his non-appearance, whom the application was called on for hearing, the court shall set aside the order on such term as to cost or otherwise as it thinks fit, and shall appoint the day for further hearing of the application. No order shall be made on this application under sub rule 1 unless the notice of the application has been served on opposite party. Very similar जो मैं आपको sufficient cause पे जितना डिस्कशन मैंने ऑर्डर 9 पे किया था, ये सेम चीज एक रेकरिंग थीम है सीपीसी में, है ना. तो सफिशिएंट कॉज को आपको कैसे कंस्ट्रू करना चाहिए, लिबरली कंस्ट्रू करना चाहिए. ठीक है, तो इसमें सफिशिएंट कॉज आप देखेंगे कि साबित हो रहा है या नहीं साबित हो रहा है, एंड यू विल गो ऑन अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन मतलब ऑर्डर 21 में जितनी भी हियरिंग होती है वो 105 और 106 के हिसाब से होती हैं. ठीक है, तो रूल 106 सिंपली आपसे इतना कहता है कि अगर एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट और एन एक्स पार्टी इज ऑर्डर इज पास्ड अंडर रूल 105, then the agreed party may apply to the court to set aside such order, and court shall set aside such order if the sufficient cause is shown. अब अगर मान लीजिए कि आपने रूल 106 के सबसेक्शन 1 में अप्लाई किया पर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई, तो क्या ये अपीलेबल ऑर्डर है? The answer is yes, it is an appealable order. Refer to order 43 rule 1. उसका क्लॉज जे देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा. एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं मेमोरी के बेसिस पे बोल रहा हूँ, तो जस्ट सी वो क्लॉज जे है या नहीं. ठीक है, जस्ट सी दैट एंड कंफर्म इट टू मी दैट यू डिड चेक. अब देखिए ये सारी चीज़ें हो गई. ठीक है, हियरिंग हो गई एप्लीकेशन की, सारी चीज़ें हो गई, तो कोर्ट क्या करेगा? ऑर्डिनरली कोर्ट ये करेगा एज अ जनरल रूल दैट इट विल एग्जीक्यूट द डिक्री. और ऐसी सिचुएशन में नोटिस ऑर्डिनरली रिक्वायर नहीं होता है. ठीक है, लेकिन कुछ सिचुएशंस होती हैं जहां पे नोटिस रिक्वायर्ड होता है. वो सिचुएशंस हैं रूल 22 में. अब ये एक्सेप्शनल सिचुएशन अराइज कर सकती हैं, तो इनको भी देख लेते हैं. तो जहां पे एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री इज मेड मोर देन 2 years आफ्टर द डेट ऑफ डिक्री, ऑर्डर 21 का रूल 22 देखिएगा, वहां पे नोटिस टू शो कॉज अगेंस्ट एग्जीक्यूशन इन सर्टेन केसेस इज गिवन. तो क्लॉज ए कहता है वेयर मोर देन 2 years हैव elapsed after the date of decree or against the legal representative of the party to the decree, or where the application is made for execution or decree filed under the provisions of section 44A जो foreign judgment से related है, and उसके डिक्री के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है. क्लॉज सी कहता है रूल 22 का अगेंस्ट एन असाइनी और रिसीवर इन इंसॉल्वेंसी वेयर द पार्टी टू द डिक्री हैज बीन एडजस्ट टू बी इंसॉल्वेंट, द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री shall issue a notice to the person against whom the execution is applied for, requiring him to show cause on the date to be fixed why the decree should not be executed against him. प्रोवाइजो कहता है कि नोटिस तब जरूरत नहीं होती है, नोटिस की जरूरत तब नहीं पड़ती है when more than 2 years have elapsed between the date of the decree and application for execution if the application is made within 2 years. मतलब बेसिकली अगर आपने एप्लीकेशन 2 साल के अंदर की है पर डिक्री 2 साल बाद एग्जीक्यूट हो रही है, तब नोटिस की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, आपने एप्लीकेशन अगर 2 साल के अंदर दे दी है और लेट अस सपोज डिक्री 2 या 3 साल बाद या 5 साल बाद एग्जीक्यूट हो रही है एज द केस में भी, तो उस सिचुएशन में रूल 22 की नोटिस देना जरूरी नहीं होगा तब. फिर द प्रोवाइजो गोज फर्दर एंड सेज एक और सिचुएशन है जहां पे नोटिस नहीं जरूरी होगी, and it says or in consequence of the application being made against the legal representative of the judgment debtor, if upon the previous application for execution against the same person the court has ordered execution to issue against him. ठीक है, तो प्रोवाइजो आपको वो सिचुएशन बता रहा है जहां पे रूल 22 की जो नोटिस की रिक्वायरमेंट है, नोटिस टू शो कॉज अगेंस्ट द एग्जीक्यूशन, वो जरूरी नहीं होती. अब रूल 22 का सब रूल 2 उस सिचुएशन के लिए है जहां पे कोर्ट जो है नोटिस की रिक्वायरमेंट को डिस्पेंस विद कर सकता है. ठीक है,
किन सिचुएशन में कर सकता है? जहां पे कोर्ट को लगता है कि इशूएंस ऑफ सच नोटिस वुड कॉज अनरीजनेबल डिले और वुड डिफीट द एंड ऑफ जस्टिस, पर इसके लिए उसे रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे. रीजंस आर रिक्वायर्ड एंड इट इज मैंडेटरी टू रिकॉर्ड रीजंस. अब एक चीज आपको बता दूं, रूल 22 इज मैंडेटरी इन नेचर. तो यहाँ पे कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है. इट हैज टू इशू नोटिस इफ द केस फॉल्स अंडर रूल 22 कि 2 साल हो गए फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री बट यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर द एग्जीक्यूशन, या एग्जीक्यूशन इज अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या the application is made for execution or decree passed by a court of reciprocating territory. ठीक है, और एक्सेट्रा बाकी जितनी भी चीजें लिखी हैं रूल 22 में. तो इन सिचुएशन में अगर फॉल कर गया तब क्या है? तब इशुएंस ऑफ नोटिस इज नेसेसरी. ऑब्जेक्ट क्या है इशुएंस ऑफ नोटिस का? सी द ऑब्जेक्ट ऑफ गिविंग नोटिस टू द जजमेंट डेप्टर is to afford him an opportunity to put forward objections if any, and also to prevent any situation which results in the judgment debtor being taken by surprise. ठीक है, तो underlying object क्या हुआ? पहला, to afford a judgment debtor to afford him an opportunity to put forward objections. अब ये जो objections हैं, it can be in relation to maintainability of the execution application, या और भी चीजें हो सकती हैं. ठीक है, तो जो भी objection judgment debtor के हैं वो रख सकता है if at all they exist. Secondly क्या है? सेकेंड ऑब्जेक्ट जो इसका ये है वो ये है टू प्रिवेंट द जजमेंट डेप्टर बीइंग टेकन बाय सरप्राइज एंड टू इनेबल हिम टू सेटिस्फाई द डिक्री बिफोर द एग्जीक्यूशन इज इशूड अगेंस्ट हिम. लेट अस सपोज जजमेंट डेप्टर को पता है कि अब डिक्री एग्जीक्यूट होने वाली है, मान लीजिए मनी डिक्री है, तो ऐसे में हो सकता है कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल कर दे, या जो भी आपने मांगा हो रिलीफ में. तो जजमेंट डेप्टर करेगा ये सब करने की क्या जरूरत है? 50,000 का लेटर सपोज डिक्री में 50,000 का मैटर है, कह रहा है मैं 50,000 आपको दे देता हूँ, ठीक है, कोर्ट में डिपॉजिट कर देता हूँ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. तो ये भी एक मौका होता है कि भाई शो कॉज नोटिस है, आपके पास ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन रखिए, और अगर ऑब्जेक्शन आपके पास नहीं है तो फिर तैयार हो जाइए, डिक्री आपके खिलाफ एग्जीक्यूट होने वाली है, और आपके पास अभी भी मौका है कि जो डिक्री होल्डर है उसका जितना भी सम है या जो भी रिलीफ है जो आप प्रोवाइड अगर कर सकते हैं, लेट अस सपोज इट्स अ मनी डिक्री, तो क्लेम मनी के लिए होगा. तो ऐसी सिचुएशन में जो भी मनी डिक्री में जितना भी सम और इंटरेस्ट है और कॉस्ट है वो आप दे दीजिए उसको. अगर आप सेटिस्फाई कर देते हैं तो कोर्ट फिर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि फिर एग्जीक्यूशन की सिचुएशन ही नहीं अराइज करेगी, क्योंकि डिक्री वुड बी सेटिस्फाइड. ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि रूल 22 मैंडेटरी है. Then always remember that omission to give notice is a defect which goes to the root of the proceedings and will render the proceedings null and void and without jurisdiction unless the judgment debtor waives such notice. ठीक है, अगर judgment debtor ने waive नहीं की तो omission to give notice would be a defect which will go to the root of the proceedings and will render them null and void. Always remember, Rule 22 is intended to safeguard the interest of the judgment debtor, and it is fundamental part of procedure touching upon the jurisdiction of the executing court to take further steps in execution. It is therefore a mandatory provision and it is a condition precedent to the validity of the execution proceeding. तो अगर आपने Rule 22 में नोटिस नहीं दी, in case the matter falls under Rule 22, Rule 22 में जितने भी clauses हैं ABC उन सिचुएशन में फॉल करता है, और आपने नोटिस नहीं दी तो क्या होगा? Omission to give notice would be a material defect which will go to the root of the proceedings and will render the proceedings null and void. ठीक, अब कुछ और भी सिचुएशन है जहां पे नोटिस देने की जरूरत होती है. ठीक है, अब वो थोड़े एडिशन में मैं बता देता हूं. जैसे कि where the decree is for payment of money and the execution is sought for arrest and detention of judgment debtor, तो you need to give notice. वहां पे भी नोटिस देने की जरूरत होती है. इस पर्पस के लिए आप ऑर्डर 21 का रूल 37 देख सकते हैं. Similarly, where the application for execution is made against the surety, let us suppose you want to make the surety liable, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? यहां पे भी you need to give notice.
सेक्शन 145 को इस पर्पस के लिए देखिए, स्पेशली उसका प्रोवाइजो। सेक्शन 145 टॉक्स अबाउट एनफोर्समेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी, ठीक है। उसके प्रोवाइजो देखिए, प्रोवाइडेड दैट सच नोटिस एट द कोर्ट्स इन ईच केस थिंग सफिशिएंट हैज बीन गिवन टू श्योरिटी। तो जब श्योरिटी के खिलाफ आप एग्जीक्यूशन चाहते हैं, देन ऑल्सो यू हैव टू गिव नोटिस टू द श्योरिटी। And finally, where the application is made by transferee or the assignee of the decree holder, there also a requirement of notice is there. ये किधर है? ये है आपके ऑर्डर 21 के रूल 16 में। रूल 16 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, देख लीजिएगा उसको, उसमें भी रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस इज नेसेसरी, ठीक है। अब रूल 23 कहता है, 22A अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट राइट नाउ। अभी सीधे हम रूल 22 के बाद 23 पे आते हैं। रूल 23 कहता है, whether person to whom notice is issued under rule 22 does not appear or does not show cause to the satisfaction of the court why the decree should not be executed, the court shall order the decree to be executed. Then it says, where the person offers any objection to the execution of the decree, the court shall consider such objection and make such order as it thinks fit. अब objection क्या हो सकता है? Objection हो सकता है with regards to maintainability of the execution application. Let us suppose that person is a stranger. Let us suppose the judgment debtor says, I have already satisfied the decree. Then why are you applying? कोई भी objection हो सकता है. So any number of objections can be taken. ठीक है? As are available with the judgment debtor. अब final point पे आ जाते हैं. That is that whether the res judicata applies on the execution applications. The answer is obviously yes, it does apply. However, it must be borne in mind that for the applicability of the res judicata, the execution application must have been heard and finally decided by the court on merits. ठीक है? It should be heard and finally decided by the court on merits. That is a necessity. Alright. If let us suppose the matter is not heard and finally decided on merits, but let us suppose the court dismisses the execution application because there has been a default of appearance, or because of non-prosecution, or because the application was premature, or because the application was belated, or on the ground that the application is non-pressed, or on the ground that the application is not maintainable at that point of time, then such order of dismissal will not operate as res judicata and the fresh execution application on the same ground for the same prayer would not be barred. ठीक है? अब आपके लिए एक सवाल, आप मुझे बताइए रेस जुडिकाटा की कौन सी एक्सप्लेनेशन इस केस में अप्लाई करेगी? ठीक। नेक्स्ट वी कम टू द लिमिटेशन पीरियड, कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का लिमिटेशन पीरियड क्या है और वो कब से कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए आर्टिकल 135 और 136 देखिए। जो आर्टिकल 136 है, इट इज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री अदर देन अ डिक्री ग्रांटिंग अ मैंडेटरी इंजंक्शन। तो मैंडेटरी इंजंक्शन को छोड़ के वो बाकी डिक्रीज के लिए है। ठीक है? It is for the purpose of execution of a decree or order of any civil court other than the decree granting mandatory injunction. That is Article 136 of Limitation Act 1963. इसमें कितना पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया गया है? 12 साल। और कब से कैलकुलेट किया जाएगा? It says that when the decree or order becomes enforceable, or where the decree or any subsequent order directs any payment of money or delivery of any property to be made at certain date or recurring periods when default in making the payment or delivery in respect of the execution is sought takes place. ठीक है? अब मैंडेटरी इंजंक्शन को लेके अगर डिक्री है तो उसके एनफोर्समेंट के लिए कितना पीरियड ऑफ लिमिटेशन है? 3 साल। द आंसर इज 3 years. इसका टाइम कब से कैलकुलेट होगा? From the date of the decree or where the date is fixed for performance from such date. अब आपके लिए एक सवाल है, परपेचुअल इंजंक्शन के एनफोर्समेंट के लिए, या लेट अस सपोज इफ द डिक्री इज फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग अ परपेचुअल इंजंक्शन, तो उसकी एप्लीकेशन के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू. द आंसर इज वेरी वेरी इजी. ठीक है? सो दिस इज इट फॉर टुडे. आज इस पे ध्यान दीजिएगा, कल हम लोग एग्जीक्यूशन पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे. ठीक है? हम इसको बहुत आराम से धीरे से ख़त्म कर देंगे. इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील. इसमें बेयर एक्ट के लेवल पे अवेयर होना होता है और ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. इंटरलिंकिंग बहुत है पर कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बिल्कुल भी नहीं है. थोड़ी बहुत डेप्थ है जिसको लेके आपको बेसिक अवेयरनेस चाहिए. देखिए, बेसिक फाउंडेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए लॉ में, तो इसको लेके ध्यान से सुनिएगा, ना समझ में आया पूछिएगा. ठीक है? So that is it for today. I would see you tomorrow.